गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ख्याति पटेल फ्रॉम अश्वमेघ विद्यालय। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग हमारे सिलेबस का लास्ट चैप्टर देखने वाले हैं। वो लास्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 16 फंक्शन। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 फंक्शन। वन ऑफ द बेस्ट, we can say that one of the best facility of the C language is its ability to define a function. C language provides a functionality ability. And function, what is function? We can say that what is function? Function is a group of statement. Okay, the simple definition of function, it is a group of statements. Okay, that perform a particular task, that is known as function. And the function is also known as method. It is also known as subroutine, or we can say that procedure also. These are the another name of function. Function is also called method, subroutine and procedure. अब तक हम लोगों ने जो सी फंक्शन हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज़ किए, वो सारे आप लोग फंक्शन के एग्जाम्पल है ऐसे बता सकते हो। जैसे हम लोगों ने अब तक प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन देखा, उसके बाद हम लोगों ने प्रोग्राम के अंदर प्रिंटफ फंक्शन देखा, उसके बाद हम लोगों ने प्रोग्राम के अंदर स्कैनफ फंक्शन देखा। ऐसा बहुत सारे फंक्शन अब तक हम लोगों ने प्रोग्राम के अंदर यूज़ किए। तो ये सारे फंक्शन के एग्जाम्पल है ऐसा आप लोग बता सकते हो। दिस ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सी फंक्शन। एंड every executable C program has at least one main function. हर एक सी प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट एक मेन नाम का फंक्शन कंपलसरी होना ही चाहिए। एंड द यूज़ ऑफ द फंक्शन इन अ प्रोग्राम मेक्स इट मॉड्यूलर. And modularity means the partitioning a complex problem into some small programs which are easy to understand and maintain. प्रोग्राम को डिवाइड करने से आप लोग उसे अच्छे से समझ भी सकते हो और उसे अच्छे से मेंटेन भी कर सकते हो. एंड वंस अ प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल सब प्रोग्राम, वी कैन राइट अ फंक्शन फॉर ईच स्मॉल प्रोग्राम. हम लोग हर एक स्मॉल प्रोग्राम के लिए फंक्शन लिख सकते हैं. ठीक है ना. देर आर टू कैटेगरीज ऑफ फंक्शन. देर आर टू categories of functions in C. First one is your library functions. Library functions is also known as system defined functions also. And second type of function is known as user defined function. These are the two categories of functions: library functions, system defined functions, or user defined function. So first of all, we will see your system defined function means your library function. These functions are provided in the C library, and these are the built-in function that we can use only in our program. ये कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो C प्रोग्राम की लाइब्रेरी के अंदर पहले से अवेलेबल किए गए हैं, और इस फंक्शन का यूज़ आप लोग सिर्फ आपके प्रोग्राम के अंदर करते हो, और ऐसे फंक्शन system defined function कहलाते हैं. So the definition is that the C language standard library provides many built-in functions that our program can use, and that are known as system defined function. And the examples of system defined functions are printf. Next one is your scanf. We can say that sqrt, that is your square root. Next one is cos. These all are known as your system defined function, or we can say that library function.
and these library functions are placed in a various header files. These all library functions are placed in a header file known as math.h. okay, and if we want to use this function, then we have to only include this header file in our program. And so to use any library function, we need to include the corresponding header file in our program, and the list of some known header files and functions are given in the example. For example, we can see that in our coding here we use the pow function, that is pow function. This function will calculate the power of the number, and this function is provided in this hash include math.h header file. So we can include this file only. okay, तो यहाँ पे ये सिस्टम डिफाइंड फंक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन है. ठीक है, नेक्स्ट टाइप के फंक्शन की बात करते हैं. तो नेक्स्ट टाइप का फंक्शन है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन. यूजर डिफाइंड फंक्शन. The functions developed by the user are known as user defined function. जो फंक्शन यूज़र डिफाइन करता है, जो फंक्शन यूज़र क्रिएट करता है, उसे आप लोग क्या बोलोगे? यूज़र डिफाइंड फंक्शन बोलोगे. ओके, द फंक्शंस डेवलप्ड बाय द यूज़र आर नोन एज यूज़र डिफाइंड फंक्शन. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, द मेन इज द स्पेशल टाइप ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शन. The main is the special type of user defined function because the program execution starts from the main and ends where main function gets over. Okay, ये main आपका सबसे important user defined function है और ये main नाम का function आपके program के अंदर compulsory होना ही चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन. ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है, इसके रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं. एडवांटेजेस ऑफ फंक्शन. फंक्शन डिवाइडिंग द प्रोग्राम इनटू फंक्शंस मेक अंडरस्टैंडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द प्रोग्राम इजियर. फंक्शंस रिटन वंस कैन बी कॉल्ड मैनी टाइम इन आवर प्रोग्राम. एक बार फंक्शन लिखा है तो उसे आप लोग प्रोग्राम के अंदर बार बार कॉल कर सकते हो. एंड इट रिड्यूस द एक्चुअल लेंथ ऑफ अ प्रोग्राम. वो एक्चुअल लेंथ भी प्रोग्राम की रिड्यूस करता है. फंक्शंस help us to avoid redundant programming for similar task. एक ही प्रोग्राम को, एक ही टास्क को बार बार करना भी ये फंक्शन ओवरकम करता है. ठीक है, अ फंक्शन रिटर्न फॉर वन प्रोग्राम मे बी यूज्ड इन अदर प्रोग्राम ऑल्सो. एक बार लिखा हुआ फंक्शन दूसरे प्रोग्राम के अंदर भी यूज़ हो सकता है. एंड सम फंक्शन कैन बी यूज्ड विथ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट. सेम फंक्शन कैन बी यूज्ड विथ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर्ग्यूमेंट. एक ही फंक्शन डिफरेंट वैल्यू के साथ आप लोग बार बार यूज़ कर सकते हो. तो ये कुछ फंक्शंस के एडवांटेजेस हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है. ये फंक्शन को आपके प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने के लिए उस फंक्शन को आपको डिफाइन करना पड़ता है. सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन डेफिनेशन. ओके, फंक्शन को लिखने की डेफिनेशन क्या है, इसे आप लोग आपके प्रोग्राम के अंदर कैसे डिफ़ाइन करोगे. तो इसकी सिंटैक्स यहाँ पे बताई गई है. इसकी सिंटैक्स के अंदर सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न टाइप आती है. मतलब हम लोग वॉइड मेन के अंदर लिखते हैं ना, वैसे यहाँ पे उसकी रिटर्न टाइप आती है. अगर वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता हो तो सिंपली मेन लिख लेना है. ठीक है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे रिटर्न टाइप आएगी. उसके बाद यहाँ पे फंक्शन का नेम आएगा. ये फंक्शन का नेम आप लोग लिखोगे यहाँ पे. उसके बाद ब्रैकेट में यहाँ पे आप लोग आर्ग्यूमेंट्स लिखोगे. यहाँ से फंक्शन का स्टार्टिंग होगा, यहाँ पे कोड होगा और यहाँ पे फंक्शन का एंड होगा. तो ऐसे आप लोग फंक्शन को डिफाइन करोगे. ठीक है, अब नेक्स्ट है, ये हो गया आपके फंक्शन का डेफिनेशन. अब आप लोगों को फंक्शन को कॉल करना है, मतलब आपका आउटपुट देखना है तो फंक्शन को कॉल करना है. तो फंक्शन को कॉल करने के लिए यदि आपको उसका सिंपल फंक्शन का
नेम यूज़ करना है, ठीक है। एवरी सी प्रोग्राम स्टार्ट्स विथ फंक्शन नेम, ओके, एंड फंक्शन कॉलिंग इज डन ऑल्सो विथ द फंक्शन नेम। तो यहाँ पे एक प्रोग्राम दिखाया गया है, वो प्रोग्राम को मैं प्रोग्राम के अंदर मैं ये चीज़ समझा रही हूँ। ये जो सबसे पहले फर्स्ट लाइन लिखी है वॉइड प्रिंट लाइन, ये फंक्शन की डेफिनेशन है। यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिफाइन किया, ये मेरा मेन फंक्शन हुआ। ये मेन फंक्शन के बाद मैंने जो ये फंक्शन डिफाइन किया वो फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा। अब मेन प्रोग्राम के अंदर मैंने ये फंक्शन का ये रिटर्न टाइप हुई, ये फंक्शन का नेम हुआ। मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट कुछ भी नहीं दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैं फंक्शन के नेम से उसको कॉल करूँगी ऐसा बोला। तो ये मैंने मेन के अंदर सबसे पहले प्रिंट लाइन ऐसा लिखा, तो ये हुआ मेरे फंक्शन का कॉलिंग, ठीक है। ये क्या हुआ, मेरे फंक्शन का कॉलिंग। तो यहाँ पे ये प्रिंट लाइन फंक्शन है, तो ये प्रिंट लाइन फंक्शन सबसे पहले आएगा, तो ये प्रिंट लाइन फंक्शन के अंदर जाएगा और यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है इक्वल टू वो प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद वो वापस से मेन प्रोग्राम के अंदर जाएगा। नेक्स्ट लाइन ये जो लिखी है वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सी फंक्शन, वो एग्जीक्यूट करेगा। वापस से फंक्शन कॉल आया तो वापस से ये फंक्शन के पास जाएगा और इक्वल टू प्रिंट करेगा। तो ये उसका आउटपुट है, समझ में आ रहा है। तो ये क्या हुआ, फंक्शन कॉलिंग हुआ, ओके। नेक्स्ट है द रिटर्न स्टेटमेंट। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस मे और मे नॉट रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन, एंड टू रिटर्न अ वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन वी मे यूज़ रिटर्न कीवर्ड। अगर वो कुछ रिटर्न करता है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रिटर्न कीवर्ड यूज़ करेंगे प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का स्कोप, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके सिर्फ नेम्स आपको याद रखने हैं। बाय द स्कोप ऑफ वेरिएबल मीन्स द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वेयर द वेरिएबल इज एक्सेसिबल एंड वेयर इट इज़ नॉट एक्सेसिबल। स्कोप का मतलब क्या हुआ कि वो वेरिएबल की वैल्यू आप लोगों को कहाँ तक मिलेगी और कहाँ तक आप लोग उसे एक्सेस कर सकते हो, इस चीज़ को वेरिएबल का स्कोप बोलते हैं। एंड द वेरिएबल स्कोप आर ऑफ टू टाइप। First one is known as global variables and second one is known as local variables, ठीक है। The scope of variables are of two type, global variables and local variable। इसका एक एग्जाम्पल दिखाया है, लेकिन आपको सिर्फ यही याद रखना है, एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए है। ये जो मेन फंक्शन है, ये मेन फंक्शन का स्टार्टिंग है, ये मेन फंक्शन का एंडिंग है। ये फंक्शन वन दूसरा फंक्शन है, यहाँ पे इसका स्टार्टिंग है, यहाँ पे एक वेरिएबल है और यहाँ पे इसका दूसरा एंडिंग है। तो ये जो टोटल और नम है NUM, वो लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है, ठीक है, ये फंक्शन के अंदर है। और यहाँ पे जो ये नंबर 1 फंक्शन लिखा हुआ है ना, वो ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है, क्योंकि वो ये फंक्शन के बाहर है, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कहाँ तक मिलेगी, उसके हिसाब से ये वेरिएबल के स्कोप के दो टाइप है, ग्लोबल एंड लोकल, ठीक है। लोकल मतलब जो ब्रैकेट के अंदर रहता है उसे लोकल बोलते हैं, और वो ब्रैकेट के अंदर तक ही आपको मिलेगा, ब्रैकेट के बाहर उसकी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। और ग्लोबल मतलब पूरे प्रोग्राम के अंदर आप लोग उसकी वैल्यू एक्सेस कर सकते हो, ओके। एंड द लास्ट टॉपिक इज टाइप्स, और वी कैन से दैट कैटेगरीज ऑफ फंक्शन। अब आपको डाउट होगा कि हम लोगों ने अभी तो देखा कि देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ फंक्शन, है ना, लाइब्रेरी फंक्शन और सिस्टम डिफाइंड फंक्शन और यूज़र डिफाइंड फंक्शन। तो वापस से टॉपिक आया टाइप्स एंड कैटेगरीज ऑफ द फंक्शन। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ वो आपको नोटबुक में लिखना है, क्योंकि मैं यहाँ पे बुक के अंदर नहीं लिख रही हूँ। डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट and return value, depending on the presence of argument and return value in a function, they fall under 3 category। रिटर्न टाइप और आर्ग्यूमेंट के हिसाब से फंक्शन की 3 कैटेगरी है। फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन
with argument but no return value and function with argument with return value। ठीक है, ये 3 नेम्स आपको पता होने चाहिए, इतना ही इम्पोर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, लेकिन एग्जाम्पल सिर्फ समझने के लिए है, ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप, ये 2 वर्ड आए तो आपको बताना है कि फंक्शन के 3 टाइप्स है। फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू एंड फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं और रिटर्न वैल्यू किसे कहते हैं, तो यहाँ पे उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया गया है। अभी मैंने आपको बताया कि ब्रैकेट के अंदर अगर यहाँ पे कुछ चीज़ मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो वो चीज़ आर्ग्यूमेंट कहलाती है, और रिटर्न मतलब फंक्शन के अंदर कुछ रिटर्न कीवर्ड आएगा, उसका मतलब है कि वो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली फर्स्ट कैटेगरी दिखाई है फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पे आप लोग ब्रैकेट में देखोगे तो ये ब्रैकेट के अंदर कहीं पे भी कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से ये फंक्शन आपको कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। यहाँ पे रिटर्न ऐसा कुछ वर्ड नहीं लिखा है। सो द फंक्शन विथ नो डेटा एंड नो रिटर्न वैल्यू। सेकेंड वन, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट बट नो रिटर्न वैल्यू। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये फंक्शन में एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे पास हो रहा है, लेकिन ये प्रोग्राम कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। यहाँ पे कोई रिटर्न ऐसा वर्ड नहीं लिखा है, मतलब ये फंक्शन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। तो ये सेकेंड कैटेगरी हुई फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट, function with argument and no return value, and the last one is function with argument and with return value, function with argument and with return value। तो इसका एग्जाम्पल कुछ ऐसे आएगा, यहाँ पे ये फंक्शन आपको, यहाँ पे ये एक वैल्यू आप लोग उसे दे रहे हो, मतलब ये आर्ग्यूमेंट आप लोग दे रहे हो, और यहाँ पे ये फंक्शन, ये रिटर्न कीवर्ड आया, मतलब ये फंक्शन आपको आंसर रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी के नेम्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तीन नेम्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। पहला है फंक्शन विथ, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि आपको अच्छे से याद रहे, फंक्शंस विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं और कोई भी रिटर्न वैल्यूज़ नहीं। सेकंड है फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, आर्ग्यूमेंट आप लोग दोगे लेकिन वो आपको रिटर्न कुछ नहीं करेगा। एंड थर्ड वन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न वैल्यू, विथ रिटर्न वैल्यूज़। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी 3 कैटेगरी है। ये किसके हिसाब से, आर्ग्यूमेंट और रिटर्न वैल्यू के हिसाब से इसकी 3 कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो चैप्टर नंबर 16 है वो चैप्टर नंबर 16 कंप्लीट होता है, और हमारा सिलेबस भी है, वो सिलेबस भी आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आपको सारे वीडियोस अच्छे से देखने हैं, सारे एमसीक्यूज़ इस चैप्टर के पीछे दिए गए हैं वो भी अच्छे से देख के सॉल्व करना है। और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो वो डाउट आपको अंडरलाइन करके रखना है, या तो कुछ भी एमसीक्यू में प्रॉब्लम हो तो वो भी आपको टिक करके रखना है, और कभी भी आप लोग कॉल करके वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो तब तक के लिए आपको ये वीडियो को देख के उसे नोटबुक में अच्छे से प्रिपेयर करके लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग हमारे जो सेकेंड टर्म की एग्ज़ाम है वो सेकेंड टर्म की एग्ज़ाम का जब रिवीजन देखेंगे तब उसके रिवीजन वीडियो में जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उसका डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू।